قابل احترام سامعین کرام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کا سب سے صحیح ترین دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، گروہ پر، بالخصوص آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رب العالمین کے پیغامات کو ہم تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، بڑی محنتیں کی، اور جو کچھ تکلیفیں ہو سکتی تھیں اس دعوت کے تئیں ان تمام تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا۔ قابل احترام بھائیوں، قبل اس کے کہ موضوع پر گفتگو کروں ایک بات کی وضاحت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب مسجد میں آئیں تو ہمیں ترتیب سے بیٹھنی چاہیے۔ ترتیب سے ہم بیٹھیں، سب سے پہلے اگلی صف مکمل کریں، اگلی صف مکمل ہو جانے کے بعد میں دوسری صف مکمل کیجئے، پھر تیسری صف مکمل کیجئے۔ اگر ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے ہم نے بھر دی پوری صف، آگے خالی ہے، اب ہمارے بھائی جو پیچھے آ رہے ہیں ان کے آگے آنے میں دشواری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو بعد میں آئے گا اسے دشواری ہوگی۔ اس وجہ سے ترتیب یہ ہے، پہلے اگلی صف مکمل کیجئے، اس کے مکمل ہونے کے بعد دوسری صف مکمل کیجئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صف کو سب سے افضل صف قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا ہم تمام لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، جو آداب ہیں، ترتیب ہیں، دین اسلام نے ہمیں جو سلیقہ زندگی عطا کیا ہے اسی پر ہم تمام لوگوں کو کاربند رہنا چاہیے، انہی باتوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ قابل احترام دینی و میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں دو موضوعات پر پہلے آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور جو بھی وقت ہے ہمارے پاس ان میں سے آدھا آدھا ڈیوائڈ کر کے دونوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور دونوں موضوعات اہم ہیں، ہر مسلمان کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جو باتیں بتائی جائیں اگر عمل کرنے سے متعلق ہیں تو عمل کریں، اور اگر ان باتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ان تمام باتوں کو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے، اس کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ رب العالمین کے ارشادات، پیغامات، ہدایات کی روشنی میں ہو۔ موضوع ہے کرسمس اور سال نو، نیا سال۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین اور جو شریعت دی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور مکمل آج نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے
पहले ही ये दीन मुकम्मल हो चुका था। हमारे भलाई के लिए, हमारे खैर के जितने रास्ते हमारे लिए हो सकते थे, दुनिया और आखिरत में इज्जत हासिल करने के लिए, एक कामयाब इंसान बन करके जिंदगी गुजारने के लिए और इस दुनिया के अंदर पूरी इज्जत व वक़ार के साथ रहने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों में अपने आप को महबूब इंसान बनाने के लिए जिन कामों की जरूरत थी, जिन अमाल की जरूरत थी, जिन रास्तों पर चलने की जरूरत थी, सारी चीजों की वजाहत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है। आपकी सही अहादीस हैं जिनके अंदर खैर के सारे रास्ते हमें मिल जाएंगे और इसके बराबर वो तमाम काम जिन कामों की वजह से इस दुनिया में हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों से हम महरूम कर दिए जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों में हम काबिले एहतराम ना रह जाएं, गैज़ो गज़ब उसका हम पर इस दुनिया में भी नाजिल हो और आखिरत में भी नाजिल हो और इसी तरीके से इस दुनिया में हमारी कोई हैसियत ना रह जाए। तो इस तरह के जो भी रास्ते थे, जो भी काम थे, उनकी भी वजाहत कर दी और साफ तौर पर कह दिया कि इस रास्ते पर चलोगे तो जन्नत में जाओगे, कामयाब इंसान हो जाओगे, इज्जत व वक़ार के साथ दुनिया और आखिरत में रहोगे। लेकिन इस सीधे रास्ते के अलावा जो दाएं रास्ते हैं, जो बाएं रास्ते हैं, ये सारे के सारे कौन से रास्ते हैं? शैतान के रास्ते हैं, गुमराही वाले तरीके हैं, रास्ते हैं। जो इंसान इस सीधी लकीर को छोड़ करके दाएं बाएं जाएगा उसे गुमराह होना है, उससे इज्जत छीन ली जाएगी, जिल्लत और रुसवाई उस पर थोप दी जाएगी। लिहाजा आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी काम किया है, आपके सहाबा ने जो काम किया है, हमें उतना ही करना है जिससे सहाबा बाज रहे, नबी दूर रहे और वो चीज नबी के जमाने में पाई जाती थी, नबी के बाद सहाबा के जमाने में बारहा वो चीज आई, उसके बावजूद ना तो नबी ने वो काम किया, ना तो सहाबा ने वो काम किया, ना तो मुहद्दिसीन ने वो काम किया, यानी पूरे असलाफ उम्मत ने वो काम नहीं किया। इसका मतलब साफ और वाज़ेह है कि हमारे लिए भी वो काम करना जायज और दुरुस्त नहीं है। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह के अगर वो काम खैर का होता तो आप वज़ाहत फरमा देते, सहाबा उस पर अमल करते, सहाबा उससे दूर रहे, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो गया और वो रब से राजी हो गए। मतलब ये है कि ऐसे उस काम का हमारे दीन और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें मेरे भाइयों, नया साल, न्यू ईयर, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में उमूमी तौर पर दो तरह के कैलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ज्यादा इस्तेमाल होता है, एक कम इस्तेमाल होता है। एक ईसवी कैलेंडर है और एक हिजरी कैलेंडर है। हमारी शरीयत के सारे मसाइल ईसवी कैलेंडर पर हैं नहीं, इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर पर है। चाँद देख करके हमें रोजा रखना है, चाँद देख करके हमें रोजा तोड़ देना है, ईद मनानी है, और भी जो सारे मसाइल हैं शरीयत के, वो सारे मसाइल हिजरी कैलेंडर के एतबार से हल किए जाएंगे, देखे जाएंगे। ईसवी कैलेंडर, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर ज्यादा इस्तेमाल ईसवी कैलेंडर का है। और बात देखें, ईसवी कैलेंडर के एतबार से ये आखिरी महीना है, दिसंबर का महीना, उसके बाद जनवरी का महीना आ जाएगा। गोया कि ईसवी महीनों में से ये आखिरी महीना चल रहा है
اس کے بعد نئے سن کی ابتدا ہونی ہے، نیا مہینہ آنے والا ہے۔ تو کیا یہ جو نیا سال شروع ہونے والا ہے سن 2025، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہیپی نیو ایئر کا اسٹیٹس واٹس ایپ پر لگانا چاہیے، یا کیک کاٹنا چاہیے، مٹھائیاں تقسیم کرنی چاہیے، پٹاخے پھوڑنے چاہیے، روڈوں پر نکل کر کے ہم گاڑیاں لے کر کے ہارن بجائیں اور لوگوں کو جس طرح سے بھی ہو سکے مخاطب کریں؟ کیا ان ساری چیزوں کی اجازت ہماری شریعت میں ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے، نئے سال تو ایسا نہیں ہے نیا سال آ جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تو آیا نیا سال، چاہے وہ ہجری سال ہو چاہے عیسوی سال ہو، آیا کہ نہیں آیا؟ نئے سال آتے تھے، صحابہ کے زمانے میں آتے تھے، لیکن کیا آپ نے کہیں پڑھا ہے پوری سیرت میں اور صحابہ کرام کی پوری زندگی میں، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، کہیں آپ نے دیکھا کہ نئے سال کی آمد پر نبی نے خوشیاں منائی ہو، صحابہ نے خوشیاں منائی ہو، اسلاف امت نے خوشیاں منائی ہو؟ کہیں بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، صاف طور پر سمجھ لو میرے بھائیو مسلمانوں، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ نئے سال کی آمد پر چاہے عیسوی سال ہو یا ہجری سال ہو، دونوں غلط ہیں، دونوں پر خوشی نہیں منا سکتے۔ پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا؟ آخر نیا سال آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے آپ ایک اگزامپل سے سمجھ لو۔ بزنس مین ہوتا ہے، جب اس کا ایک سال ختم ہوتا ہے بزنس کا، نیا سال آتا ہے تو وہ دو کام کرتا ہے لازمی طور پر۔ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے، پچھلے سال کا وہ پورا ریکارڈ دیکھتا ہے۔ پچھلے یہ جو سال گزر رہا ہے، دسمبر کے اخیر میں دیکھنا کئی ساری چیزیں سستی بھی ہو جاتی ہیں، تو بزنس مین کرتا ہے یہ پچھلے سال میں کتنا گھاٹا ہوا، کتنا نقصان ہوا، پورے سال کا وہ حساب کرتا ہے۔ ایک کام یہ کرتا ہے۔ دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے، اب اگلا سال 2025 آنے والا ہے، اس میں میں اور کیا اچھا کر سکتا ہوں، کون سے طریقے اپنا کر کے اپنے بزنس کو اور ڈیولپ کر سکتا ہوں، آگے بڑھا سکتا ہوں۔ یہ ایک بزنس مین کرتا ہے، اس کا یہ دماغ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے۔ سیم اسی طریقے سے ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے گزرے ہوئے اوقات کے بارے میں دو چیزیں کیجیے۔ نمبر ایک، محاسبہ کیجیے۔ نمبر دو، مستقبل کا لاہے عمل تیار کیجیے۔ محاسبہ کس بات کا کرنا ہے میرے بھائیو؟ محاسبہ کرو کہ جو پچھلا سال گزرا اس میں ہم نے رب کی کتنی اطاعت کی، ہم نے رب کی کتنی نافرمانی کی، پچھلے سال میں نماز سے ہم کس قدر غافل رہے، پچھلے سال میں ہمارے یہاں توبہ و استغفار کا کس قدر اہتمام پایا جاتا تھا، پچھلے سال کو ہم نے کتنا کتاب و سنت کی روشنی میں گزارا ہے، اور کتنے اوقات ہم نے ضائع کر دیے، برباد کر دیے۔ تو ایک محاسبہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ پچھلا جو سال گزرا اس میں ہم نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگوں اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے لوگوں اپنا حساب لو، اپنے نفس کا جائزہ لو، اپنے آپ سے پوچھو، جب شام کو بستر پر جاؤ تو اپنے نفس سے سوال کرو کہ ہم نے پورے دن میں کتنے نیکیاں کی ہیں، کتنے نافرمانی کے کام کیے، کتنے غیبت کیے، کتنے جھوٹ بولے، کتنا الزام لگایا، اور اللہ کو راضی کرنے والے کتنے اعمال کیے۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ محاسبہ کیجئے میرے بھائیوں پچھلے سال کا۔ نمبر دو، مستقبل کا لاہے عمل تیار کیجئے۔ ایک چارٹ ہو آپ کے پاس، ایک نوٹ بک ہو آپ کے پاس، اور آپ اس پر تیار کیجئے اگلے سال ہمیں اور کون کون سے نیک کام کرنے ہیں، اگلا سال ہمارا کس طریقے سے ہو کہ کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو،
अगले साल में हमें नमाज का एहतिमाम, नवाफिल का एहतिमाम, रोजों का एहतिमाम, जिक्र अज़कार का एहतिमाम, अल्लाह के घर में बैठ करके रब को राजी करने वाले अमाल का एहतिमाम और ज्यादा होना चाहिए। इस तरीके से जब एक लाहे अमल तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। याद रखो मेरे भाइयों, ये इंसान भी कैसा इंसान है। एक साल बीत गया, खुशियां मना रहा है, लोगों एक साल गुजर गया। अगर आपकी किस्मत में 7 साल लिखे हुए थे और एक साल बीत गया, मतलब ये है 59 साल आपके और बचे। गोया कि हर गुजरने वाला साल हमें कब्रिस्तान से करीब कर रहा है, कब्र से हमें करीब कर रहा है। कब्र से जब हम करीब हो रहे हैं तो हमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं, अपना मुहासबा करने की जरूरत है। याद रखें, कितने चेहरे थे पिछले साल या अभी जो साल गुजरने वाला है, इन 12 महीनों में हम देखे कितने चेहरे थे हमारे दरमियान, उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे। आज वो चेहरे मौजूद नहीं, आज वो लोग मौजूद नहीं। हर गुजरने वाला दिन हमें मौत का पैगाम देता है, हर गुजरने वाला वक्त हमें कब्रिस्तान से करीब कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बतौर खास जवानी के बारे में जवाब दे होना होगा। जवानी के बारे में रब सवाल करेगा। और आज नए साल की मुनासिबत से हमारा नौजवान सबसे ज्यादा गाफिल होता है। बाइक और स्कूटी लेकर के रोडों पर निकलेंगे, पटाखे फोड़ेंगे और ना जाने कौन कौन से अमाल करेंगे। जवानी के बारे में बतौर खास सवाल होगा। इसी तरीके से उम्र के ताल्लुक से जो अल्लाह उम्र हमें अता फरमाता है, 60 साल 70 साल, उसके हवाले से रब हमसे सवाल करेगा। अगर हमने अपनी ये कीमती औकात हैप्पी न्यू ईयर में लगाया, मुबारकबादियां दी साल के आने पर, तो रब के सामने हम क्या जवाब देंगे? रब हमसे पूछेगा, ये काम बंदे तूने क्यों किया, किसने इजाजत दी थी? कुरान में कहा लिखा था, मोहम्मद के फरमान में कहा था कि नए साल की आमद पर खुशी मनाओ। लिहाजा मेरे भाइयों, नए साल की आमद पर खुशी नहीं मनाना है, बल्कि हमें अपना लाहे अमल तैयार करना चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए। इसी तरीके से नए साल की आमद पर कोई दुआ नहीं है किताब और सुन्नत में कि उस दुआ का इस्तेमाल किया जाए लोगों के लिए। इस वजह से नए साल के हवाले से आखिरी बात यह है कि खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, मुहासबा कीजिए और इसी तरीके से आगे अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि कब्र में भी हमारी जिंदगी सुकून की जिंदगी हो और इसी तरीके से कल हमें अंबियाए किराम, शहदाए इज़ाम और इसी तरीके से सिद्दीकीन की रिफाकत मिल जाए। अगला मौजू है मेरे भाइयों हमारे सामने क्रिसमस के हवाले से। ये ईसाइयों का एक त्योहार है जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके हकाइक क्या है और कब से इसकी शुरुआत हुई, इसको जिक्र करने से पहले कुछ आयतें आपके सामने मैं जिक्र कर देता हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 208 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम इस्लाम में मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी मत करो, उसके नक्शे कदम पर मत चलो। क्यों? वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतानी हथकंडे, शैतान इंसान को मुख्तलिफ रास्तों से गुनाहों को मुख्तलिफ रंगों में रंग करके मुज़य्यन करके खूबसूरत बना करके पेश करता है। इंसान को खूबसूरत लगे मुख्तलिफ हरबे अपनाता है। चुनांचे उसने इंसानों को गुमराह करने के लिए, उसने इंसानों को रब को राजी करने वाले अमाल से दूर करने के लिए कई हरबे अपनाए। उन्हीं में से एक हरबा ये कि आज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है 25 दिसंबर के मौके पर हैप्पी क्रिसमस या मुबारकबादी के पैगामात इरसाल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। मुशाबहत किस चीज में मुशाबहत?
नंबर 1 इबादात में, अकाइद में, आदात में, आदात, इन 3 चीजों में अगर इंसान मुशाबहत इख्तियार कर रहा है तो गोया कि वो उन्हीं में से हो जाएगा। अगर किसी कौम के मानने वालों के पास कोई खास मजहबी लिबास है जिसे वो पहनते हैं और वो उनका मजहबी लिबास है, तो अब वो लिबास कोई और मुसलमान नहीं पहन सकता। कोई किसी खास रंग का अगर है, डिजाइन का भी है, कैसा भी है, मजहब से अगर उसको जोड़ दिया गया है तो अब उस लिबास को कोई मुसलमान नहीं पहन सकता। अगर पहन रहा है तो गोया कि वो उनकी उससे पहनावे में मुशाबहत इख्तियार कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा शख्स उन्हीं लोगों में से हो जाएगा। अकाइद में इसी तरीके से अगर किसी कौम का कोई अकीदा अल्लाह के बारे में है, फरिश्तों के बारे में है, रसूलों के बारे में है और वो अकीदा किताब और सुन्नत से साबित नहीं है, कोई मुसलमान मानता है, उस अकीदे को तस्लीम करता है, तो वो उन्हीं में से हो जाएगा। इबादत है, किसी कौम वालों ने कोई इबादत ईजाद कर ली और उस इबादत का तसव्वुर हमारी शरीयत में नहीं है, नुसूस में नहीं मिलते, अगर कोई मुसलमान वो इबादत अंजाम देता है तो गोया कि वो उन्हीं में से हो जाएगा। मेरे भाइयों देखो, 25 दिसंबर को कहा जाता है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, लेकिन कुरानी आयात हमें ये बतलाती हैं 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई नहीं। 25 दिसंबर को उनकी पैदाइश नहीं हुई है, बल्कि आप देखें जब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पेट से थी और बच्चे की पैदाइश की जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ जब शुरू हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा खजूर के दरख्त के पास जाओ और उसकी शाखें हिलाओ, खजूर गिरेंगे वो खाओ। अब सवाल ये है, जिस इलाके में उनकी वालिदा थी उस इलाके में खजूर कब पैदा होते थे? अगर ये समझ जाएंगे तो फिर समझ जाएंगे ये भी 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश हो सकती है कि नहीं। देखें, जिस इलाके में उनकी वालिदा ठहरी हुई थी, रहती थी, उस इलाके में खजूर के फल जुलाई और अगस्त के महीने में आते थे। जुलाई और अगस्त के महीने में आते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना खजूर के दरख्त के पास जाओ और उसके टहनियां हिलाओ और खजूर खाओ, तो गोया कि पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ठंडी के मौसम में, दिसंबर के मौसम में, महीने में नहीं हुई है, गर्मी के मौसम में या मौसम बहार में हुई। इसी तरीके से ईसाइयत की जो किताबें हैं मजहबी, उन किताबों में भी अगर इंसान ढूंढे, तलाश करे या ईसाइयत के अलावा दीगर जो किताबें तारीख पर लिखी गई हैं उन किताबों को भी अगर इंसान पलटे तो कहीं भी ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर हमें सही कौल के मुताबिक कहीं भी नहीं मिल सकती है। खुद उनके आपस में इख्तिलाफ है, उनके बड़े बड़े जो पादरी हैं, जो भी हैं, उनसे पूछें, उनके यहाँ भी ये चीजें क्या कहते हैं, इख्तिलाफ का शिकार मिलेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 25 दिसंबर है। और बिन फर्ज अगर हम मान लेते हैं कि चलो 25 दिसंबर उनकी पैदाइश है, तो क्या हमारा मजहब, हमारा धर्म हमें इस बात की इजाजत देता है कि 25 दिसंबर को हम उनके इस त्योहार में, उनके इस रस्म में, मजहबी त्योहार में शिरकत करें? हमारी शरीयत हमें इजाजत देती है? नहीं देती है। क्यों? अगर ये हमारी शरीयत का हिस्सा होता, अगर ये काम हमारी शरीयत में जायज होता कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, जो कि अल्लाह के एक नबी थे, लिहाजा उस खुशी में हम शिरकत करें, तो अल्लाह के नबी के जमाने में भी तो ये दिन आए थे कि नहीं आए थे? और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से पहले के हैं। अगर हमारी शरीयत में ये चीज जायज होती,
खुशी पर मुबारकबादी देना, उनके त्योहारों में शिरकत करना, उन्हें मिठाइयाँ देना, हैप्पी के लफ्ज इस्तेमाल करना, अगर ये चीजें होती तो कहीं कुरान में इसका जिक्र या हदीस रसूल में इसका तज़किरा मिलता। नबी मनाते, सहाबा मनाते, उनके बाद के लोग मनाते, लेकिन कहीं नहीं, बल्कि सख्ती के साथ मना किया गया। कई बार ये दिन आए, ये महीने आए, लेकिन किसी ने भी नहीं मनाया। इसी तरीके से मेरे भाइयों, खराबियां बहुत सारी हैं, खराबियां बहुत सारी हैं। हम लोग तो ये समझते कि क्या है, बस एक त्योहार है, जाकर के शरीक होकर के आ गए। कई खराबियां हैं मेरे भाइयों। देखो, 2-3 खराबियां मैं आपके सामने जिक्र करता हूं। इसका ताल्लुक, इस मसले का ताल्लुक असलन अकीदे से है। किससे है? अकीदे से है, इबादत से नहीं है, मसाइल से नहीं है, अकीदे से है। और अकीदा हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। अगर हमारा अकीदा चौपट हो जाए, खराब हो जाए, तो हमारी इबादतें चौपट है। बात सही है गलत है? अगर अकीदा नहीं दुरुस्त तो इबादतों का कोई फायदा नहीं। ठीक है, ईसाइयों का अकीदा क्या है? ईसाइयों का अकीदा ये है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या अकीदा उनका? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, तारुफ क्या है, इस हवाले से कुरान करीम के अंदर सबसे वाज़ेह सूरत सूरह अहद, कुल हुवल्लाहु अहद है, सबसे छोटी सूरत। ये सूरत आप पढ़े देखें। अल्लाह कहता है वो रब तन्हा है, बेनियाज है, उसने ना तो किसी को जना है और ना वो खुद जना गया है। रब तो ये कहता है कि उसका बेटा नहीं, उसका कोई औलाद नहीं, उसे भी किसी ने पैदा नहीं किया। और यहाँ अकीदा क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अब 25 दिसंबर को अगर इस त्योहार में कोई मुसलमान शिरकत करता है, गोया कि वो इस अकीदे से इत्तेफाक रखता है, गोया कि वो इस अकीदे से इत्तेफाक रखता है, मुत्तफिक है कि हाँ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और जिसका ये अकीदा हो जाए ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, क्या वो मोमिन और मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। क्यों? रब का कोई बेटा नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, नबी की हदीस है, इब्ने आदम मुझे गालियां देता है। आप सोचे जरा, अल्लाह क्या कहता है? इब्ने आदम मुझे गालियां देता है। और गाली क्या है? गाली ये है कि वो ये कहता है कि अल्लाह का बेटा है कोई, अल्लाह का बेटा है कोई। अल्लाह के लिए बेटा साबित करना गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देना है। क्या देना है? गाली देना है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, अबू मूसा अशअरी रिवायत करते हैं, कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। हम कहेंगे अल्लाह क्या सब्र करता? मुसीबतें हम पर आती हैं, आफतें हम पर आती हैं, हम सब्र करते हैं, अल्लाह क्या सब्र करता? अल्लाह से ज्यादा कोई सब्र करने वाला नहीं। कहोगे कैसे? तो उसका जवाब ये है, देखो अल्लाह हमें खिलाता है, अल्लाह हमें पिलाता है, जिंदगी देता है, नेमतें इतनी दी हैं, अगर हम काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन का मसला ले लीजिए। इंसान बीमार हो जाता है, उसे ऑक्सीजन चाहिए, एक घंटे पे कितने हजार रुपए लग जाते हैं ऑक्सीजन के, मालूम है ना? और अल्लाह हमें वो ऑक्सीजन कैसे दे रहा है? फ्री दे रहा है। कितनी अजीम नेमत है। जब बीमार होता है इंसान तब पता चलता है कि एक नेमतों की कद्र क्या है। उसके बावजूद देखे इंसान अल्लाह के साथ ज्यादती क्या करता है, जुल्म क्या करता है, उसकी इबादत नहीं करता। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बेटा साबित करना, अबू मूसा अशअरी कहते हैं अल्लाह के लिए जब इंसान बेटा साबित करता है तो गाली दे देता है। और इसी तरीके से दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह उस पर सब्र करता है, उसकी जात को बहुत तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र किया कि ये इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बेटा साबित करता है, करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ टूट जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के गैज़ व गज़ब से अल्लाह इस कदर नाराज होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन
صبر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی غیر مذہب کے تیوہار میں شرکت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنا ایمان اور عقیدہ بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ جو کچھ نبی کی تعلیمات ہیں، قرآنی تعلیمات ہیں، انہیں پر رہ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اس طرح کے جو تیوہار ہوتے ہیں پہلی بات تو وہ ثابت نہیں ہے۔ 25 دسمبر میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا، اور مان لیجئے چلے صحیح ہے 25 دسمبر، تو اس میں شرکت کرنا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ غیر قوم کی مشابہت ہے، ان کے عقائد سے ایک طریقے سے اتفاق کرنا ہے، کلم کلا شرک اور کفر کیا جاتا ہے، اور فی نفسی ہی یہ تیوہار ہی کفر اور شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جان لینے کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 25 دسمبر آئے تو اپنے واٹس ایپ پر لگائے کہ ہیپی ہے، آپ کے لیے خوشی ہے، مبارکبادی ہم دیتے ہیں۔ کوئی اگر عیسائی آپ کا دوست ہے اور یہ عیسائی یہ یہودی دوسرے دھرم کے ماننے والے اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں، اللہ نے کہا ایسے لوگوں تم اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے تیوہاروں میں شرکت نہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور غیر لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں محفوظ اور مامون رکھ، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بھائیوں، ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ جمعہ کی نماز ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے، اور اس میں اگر ہم تاخیر سے آئیں، جمعہ کا دن ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے۔ پورا اس طریقے سے ہم آئیں کہ ہم پوری تقریر سن لیں، پورا خطبہ سن لیں، کوئی بھی چیز ہم سے چھوٹنی نہ پائے۔ بڑا قیمتی یہ وقت ہے، اور جو باتیں آپ کے سامنے بتلائی جاتی ہیں ادھر ادھر کے نہیں، قرآن اور حدیث سے بتلائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے جمعے میں لوگوں کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی پہنچیں، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے پوری تقریر سنیں، اور جو باتیں ذکر کی جائیں ان پر عمل کریں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی وعلا واجل واتم اکبر، واللہ یعلم۔